Good morning children. Welcome to class 3 computers. Children, how are you all? I hope you all are fit and fine. Children, this is our computer class. In our previous video children, we were doing chapter 3, that is computer hardware. So children, in this chapter till now we have studied about the different types of हार्डवेयर कंपोनेंट्स. सो चिल्ड्रन, जैसा कि हम जानते हैं in this chapter we are going to read about computer hardware, and in the computer hardware we were reading hardware components. So children, what are hardware components? In our previous video we were studying what are different hardware components. So children, under hardware components also we had discussed about input devices, all the input devices. Now today we will be reading our next point, that is output devices. So children, let us revise what we have did in our previous video and then proceed further in the chapter. So children, hardware components. In our previous video we were reading about hardware components. So children, these are first hardware component is input device. Under input device children, we had studied about different types of input devices. So children, input is not a new word for us. We have already studied about word input in our previous class. Input means giving instructions to the computer. So children, when you give instructions to the computer, then only computer performs any work. So before doing any work, or before the computer we give any work to the computer to do, we give some data or we give some instructions. So children, these instructions are called input, and for giving these instructions we need some devices, and the devices used for giving the instructions are called input devices. So यहाँ पे input devices are, let us write the points of the names of different input devices. So children, these input devices are, first one is keyboard, about which we have already studied. So children, what is keyboard? Keyboard is a part of computer. So children, when we were studying about different parts of computer, we have studied that there are some parts of the computer which are very important, and without these parts computer cannot perform any work. So keyboard is one of the important part of the computer which is used to give instructions to the computer in the form of वर्ड्स और नंबर्स. जैसा कि हम जानते हैं जो कीबोर्ड होता है उसमें वर्ड्स भी लिखे होते हैं, नंबर्स भी लिखे होते हैं. तो अगर हमें वर्ड्स और नंबर्स के फॉर्म में कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देना है तो हम कीबोर्ड से देते हैं. सो चिल्ड्रन, कीबोर्ड हैज सेवरल स्मॉल बटन्स एंड दीज बटन्स आर कॉल्ड कीज. और इन बटन्स पे हमें नंबर्स लिखे होते हैं, अल्फ़ाबेट्स लिखे होते हैं. और अगर हमें कंप्यूटर को कोई भी इंस्ट्रक्शंस नंबर्स और अल्फ़ाबेट के फॉर्म में देना है तो वी यूज द कीबोर्ड. सो चिल्ड्रन, द स्मॉल बटन्स प्रेजेंट ऑन द कीबोर्ड इज कॉल्ड कीज. Then children, we give the instructions to the computer by pressing these keys. इन कीज को प्रेस करके हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देते हैं. Then children, other than these we have 101 to 105 keys present on the keyboard. कीबोर्ड पे हमारे पास 101 से 101 to 105 कीज प्रेजेंट ऑन द कीबोर्ड. तो हमारे पास जो कीबोर्ड होता है जिसे हम इनपुट करते हैं, कीबोर्ड से हम क्या इनपुट करते हैं? हम अल्फाबेट्स और नंबर्स को इनपुट करते हैं. व्हाट डू वी इनपुट यूजिंग द कीबोर्ड? वी इनपुट द इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ अल्फाबेट्स क्या होते हैं? A to Z alphabet. It can be either in small letter or in capital letters. So children, if you want to give instructions in the form of alphabets, you will give either in small letter or in capital letter. Then we have numbers.
if you want to give instructions in the form of number, so children you have numbers starting from 0, 1 to 9. आप जानते हो नंबर्स हमारे पास 10 होते हैं, 1 से 9 और 0. आप 0 को बाद में भी लिख सकते हो. यू कैन राइट 0, 1 to 9 and 0. These are the 10 numbers which we have on the keyboard. Other than these, we have some special signs or symbols using which we perform different types of work on a computer. So children, these are the things which are present on the keyboard. And what are these keys, children? These keys are the small buttons. Small buttons. अगर आपको कंप्यूटर में कोई भी इंस्ट्रक्शंस देना है तो यू प्रेस दीज बटन. आप इस बटन को प्रेस करते हो एंड यू गिव द इंस्ट्रक्शन. सो दीज आर द डिफरेंट दिस इज ऑल फॉर द कीबोर्ड चिल्ड्रन. सो टिल नाउ वी हैव स्टडीड दैट कीबोर्ड इज अ इनपुट डिवाइस. कीबोर्ड एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है. कीबोर्ड इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर विदाउट विच अ कंप्यूटर कैन नॉट परफॉर्म एनी वर्क. कंप्यूटर सिस्टम नहीं पूरा होगा. As we know, computer works in a system. In the computer system, we have several important parts of the computer, that is keyboard, mouse, monitor और आपका CPU. सो ये सारे मिलकर के कंप्यूटर सिस्टम बनाते हैं. इनमें से एक भी पार्ट अगर कंप्यूटर का नहीं है तो कंप्यूटर वोंट बी एबल टू परफॉर्म एनी वर्क. तो चिल्ड्रन, वी वर टॉकिंग अबाउट हार्डवेयर कंपोनेंट्स. हार्डवेयर कंपोनेंट में सबसे पहले वी हैव स्टडीड अबाउट इनपुट डिवाइसेस. अंडर इनपुट डिवाइसेस वी हैव फर्स्ट टाइप ऑफ इनपुट डिवाइस, दैट इज कीबोर्ड. Keyboard is a part of computer which is very important, and it has 101 to 105 keys, alphabets A to Z, numbers 1 to 9 and 0. These keys are the small buttons. ये जो keys होते हैं ये small buttons होते हैं which are pressed in order to give the instructions to the computer. अगर आपको कंप्यूटर को instructions देते हैं तो हम इन keys को press करके कंप्यूटर को instructions देते हैं. तो children, this is first input device that is known as keys. Okay, now then we have next one. So children, next input device is, as we know children, our next important input device is mouse. Mouse is another input device. Mouse is another input device. So here we will write M-O-U-S-E, mouse. So children, just now I told you about important parts of the computer which form computer system, and computer works in a system. So mouse is another part of the computer which is very important and it is used for giving instructions to the computer. अब अगर हमें माउस से instructions देना है तो हम instructions कैसे देंगे? We give instructions by selecting any object which is displayed on the screen, by moving the object, or by showing or pointing the object. So children, you can see the picture of mouse in your book. Here is the picture of a mouse in your book. A mouse has 2 buttons. Children, in some mouse we have 2 buttons and in some mouse we have 3 buttons. But here we can see there is a mouse which has 2 buttons, and we will be reading about the mouse which have 2 buttons. So in our previous chapter also we have studied about a mouse, which had only 2 buttons, and there is one more option or the button which is just like a small wheel, which you can see here. Children, दोनों बटन जो हमारे पास 2 माउस में बटन है, one is towards the left side and the other is towards the right side. So the one which is pointed towards, which is on your left hand side, that is called left mouse button, and the one which is towards your right hand side is called right button. So children, left button and right button are the 2 buttons. In between these 2 buttons we have a small wheel like structure. इन दोनों के बीच में हमारे पास एक छोटा सा wheel like structure होता है जिसको हम scroll button कहते हैं. आपने देखा होगा जब भी हमको कोई लिस्ट देखनी होती है या फिर कोई मेन्यू देखना होता है तो हम स्क्रीन को स्क्रॉल करते हैं, अप डाउन करते हैं. तो उस केस में हम स्क्रीन को कैसे अप डाउन कर सकते हैं? हम जो व्हील जैसा या पहिए जैसा एक छोटा सा बटन हमारे माउस पे होता है उसको घुमा करके अपने फिंगर से उसको रोल करके हम स्क्रीन को स्क्रॉल कर सकते हैं. तो इसलिए हम इसको स्क्रॉल बटन कहते हैं. अगर आपने टॉयज देखा होगा, छोटे छोटे खिलौने, कार होती है या फिर हमारे पास हेलीकॉप्टर होती, कोई भी
पहिए वाला खिलौना होता है, जैसे ट्रक हो गया, कार हो गया, तो उसमें छोटे छोटे व्हील्स होते हैं। उसी तरह एक छोटा सा व्हील इस माउस में भी होता है, जिसको हम स्क्रॉल बटन कहते हैं। और वी हैव ऑलरेडी स्टडीड हाउ टू यूज अ माउस एंड हाउ वी व्हाट आर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द माउस in our previous chapter also, so it is nothing new for you. We are just revising these things which we have already studied in our previous class, only the topic is different. The topic is new, that is hardware, and this topic we have not studied these things under this topic, but this year we are studying these things in the topic under the topic hardware components. So children, mouse is another input device. माउस भी एक तरह का input device है which is used to give instructions. जैसा कि मैंने बताया कि it fits comfortably in your hands. आप उसके ऊपर अपना palm रख सकते हो. It fits conveniently or comfortably in your palm, and by keeping your palm on the mouse and keeping your index finger and middle finger on the mouse, you can operate the mouse. तो children, index finger को हम left button पे रखते हैं और हमारा जो मिडिल फिंगर है उसको हम राइट बटन पर रखते हैं. सो चिल्ड्रन, एज आई टोल्ड यू, इट इज यूज्ड टू ड्रॉ पिक्चर्स and select the object. Children, we have already studied about MS Paint last year, means in our previous class. Why I am telling this children? क्योंकि हम इन सब चीज़ों का जो भी मैं आपको बता रही हूँ, all these things we have already done in our previous class. So this is, all these things are nothing new to you. ये सारी चीज़ें आप पहले से जानते हो, सिर्फ हम एक बार इसको फिर से दूसरे टॉपिक के अंडर में पढ़ करके इसको रिवाइज कर रहे हैं. तो माउस को आपने पढ़ा था कि हम अपने इंडेक्स फिंगर को लेफ्ट माउस बटन पे रखते हैं और मिडिल फिंगर को राइट माउस बटन पे रखते हैं और अपने पाम से कंफर्टेबली माउस को पकड़ करके उसे हम ऑपरेट करते हैं. एंड वाई एंड इट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट इनपुट डिवाइस. सो चिल्ड्रन, सबसे पहले वी नो दैट माउस इज अ इनपुट डिवाइस. वी हैव रिटन इट अंडर इनपुट topic, input device के topic में. So it is one of the important input device. Then it has two buttons. It has two button. It has two button and a scroll button. दो बटन होते हैं और एक scroll button होता है. Then children, mouse fits comfortably in our hand and it is used to draw a picture or show or move, draw pictures or show or move any object displayed on the monitor. कोई भी ऑब्जेक्ट जो मॉनिटर पे डिस्प्लेड है उसको हम मूव कर सकते हैं, शो कर सकते हैं, पॉइंट कर सकते हैं. दीज आर द मेन फंक्शंस ऑफ दिस माउस. सो चिल्ड्रन, देन इट इज ऑल्सो called as pointing device. As I told you children, mouse is used to point something on the screen. अगर कोई चीज को हमें स्क्रीन पे पॉइंट करना है तो this mouse is used for pointing it. That is why it is also known as, it is called as pointing device. इसको हम pointing device कहते हैं. So children, mouse is second part of the computer which is very important. It has two buttons. Children, it has two buttons and a scroll button. This scroll button is also known as wheel. Scroll button को हम wheel भी कहते हैं क्योंकि ये पहिए की तरह, एक व्हील की तरह दिखाई देता है, इसलिए हम इसको व्हील भी कहते हैं. Then it is used to draw pictures. हमने MS Paint के बारे में पढ़ा है. MS Paint में चिल्ड्रन हम बिना माउस के काम नहीं कर सकते हैं. So children, as you know, in MS Paint program we use mouse. Without a mouse we cannot draw or color the picture in the MS Paint. So children, one of the function of a mouse is to draw and color, and then it is also used to show or move any object displayed on the
मॉनिटर। अगर हमें किसी ऑब्जेक्ट को मॉनिटर पे शो करना है या डिस्प्ले करना है तब भी हम इस माउस पॉइंटर का यूज करते हैं या हम माउस का यूज करते हैं। एज इट इज यूज टू शो और डिस्प्ले समथिंग ऑन as it is used to show and point something on the screen children, it is also known as pointing device। हम इसे pointing device भी कहते हैं। and it is displayed by a pointer on a arrow shaped pointer on the screen। तो अगर आपने एक arrow shaped pointer screen पे देखा होगा तो that is controlled by the mouse and it is also known as pointing device। तो हम इसको यूज करके हम किसी भी चीज को स्क्रीन में पॉइंट कर सकते हैं या डिस्प्ले कर सकते हैं। तो दिस इज सेकेंड इनपुट डिवाइस चिल्ड्रन। नाउ वी विल रीड आवर नेक्स्ट इनपुट डिवाइस चिल्ड्रन। आवर नेक्स्ट इनपुट डिवाइस इज स्कैनर चिल्ड्रन। इट इज स्कैनर। एज यू नो चिल्ड्रन, जो स्कैनर होता है, स्कैनर इज जस्ट लाइक अ फोटो कॉपियर मशीन। आपने देखा होगा, आप अगर कभी बाहर शॉप में जाकर के कोई चीज़ का फोटो निकलवाया होगा या प्रिंट आउट निकलवाया होगा तो आपने देखा होगा कि एक बॉक्स टाइप होता है, उस पर हम अपनी बुक या कॉपी को रख करके इसका फोटो निकालते हैं। उसी तरह स्कैनर भी हम कंप्यूटर में एक पार्ट होता है, यू कैन सी इन द पिक्चर। इसके अंदर भी हम जो नीचे बेस होता है उसके ऊपर कोई भी चीज़ रख करके उसकी पिक्चर निकालते हैं। तो ये एकदम फोटो कॉपियर मशीन की तरह होता है और यहाँ पे हम जो फोटो इससे निकालते हैं उसको हम कंप्यूटर को प्रोवाइड करते हैं। तो दिस स्कैनर इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट इनपुट डिवाइस। ये भी एक तरह का इनपुट डिवाइस है, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट पार्ट कंप्यूटर का नहीं है। हम इसे अलग से ऐड करते हैं और उसके बाद हम इसको तभी ऐड करते हैं जब हमें ऐसे हमको पिक्चर के फॉर्म में कंप्यूटर को कोई भी इंफॉर्मेशन देना है या फिर डेटा देना है या फिर इंस्ट्रक्शन देना है। तो चिल्ड्रन, स्कैनर इज नॉट एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर बिकॉज अ कंप्यूटर कैन वर्क विदाउट दिस स्कैनर ऑल्सो। देन चिल्ड्रन, नेक्स्ट we can copy image, we can give, मतलब the instructions can be given in the form of image, text, या फिर हम ड्राइंग के फॉर्म में भी इमेज स्कैनर से दे सकते हैं। उसके बाद चिल्ड्रन, our next type of input device is joystick। joystick is also one of the part of computer children, लेकिन ये भी कोई important part नहीं होता। It is used only when it is needed। अगर हमें इस तरह का कोई काम करना है जहाँ जॉयस्टिक का हमें ज़रूरत है, वहाँ पे हम जॉयस्टिक को यूज़ करते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर हम हमारे कंप्यूटर में हमने जॉयस्टिक को ऐड नहीं किया है तो हमारा कंप्यूटर काम नहीं कर पाए, क्योंकि जॉयस्टिक का सिर्फ काम है, हम जब गेम खेलते हैं तो गेम खेलते टाइम हम गेम में जो भी इंस्ट्रक्शंस देते हैं दैट इज कंट्रोल्ड। पूरे गेम खेलते टाइम हम इससे कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देते हैं और हम गेम खेल पाते हैं। तो ये उसी टाइम हमें चाहिए होता है जब हम गेम खेल रहे होते हैं। तो दिस इज नॉट एट ऑल एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कंप्यूटर, बट वी आर गिविंग इंस्ट्रक्शंस यूजिंग दिस जॉयस्टिक, दैट इज व्हाई इट इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट इनपुट डिवाइस। ये भी एक तरह का इनपुट डिवाइस है एंड इट इज यूज्ड while playing games। हम इसको यूज करके गेम्स खेलते हैं। Then children, next input device is webcam। As you know children, webcam is another input device which is used to give जिसे हम वीडियो बना सकते हैं या फिर हम वीडियो के फॉर्म में इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, क्योंकि वो क्या करता, वो एक तरह का कैमरा होता है जो कि पिक्चर कैप्चर करता है और हम उस पिक्चर को वीडियो के फॉर्म में भी उसे प्रोवाइड कर सकते हैं और उसको हम इंस्ट्रक्शंस के फॉर्म में भी उस पिक्चर को हम इंस्ट्रक्शंस के फॉर्म में कंप्यूटर को प्रोवाइड कर सकते हैं। तो चिल्ड्रन, वेबकैम कह सकते हैं, डिजिटल कैमरा कह सकते हैं। ऑल दीज आर another important input device। Then we have microphone also। Children, microphone is also one of the input device about which we have already discussed। So children, microphone को भी use करके हम अपने वॉइस में या हम बोल करके कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं। तो इट इज ऑल्सो वन ऑफ द इनपुट डिवाइस। Then children, touch screen। As you know children, we all are using mobiles nowadays for doing our classes, for sending messages or receiving messages, and we know that our mobile or our tablet can be used by touching the screen। हम उसके स्क्रीन को यूज करके बहुत सारे इंफॉर्मेशन, मतलब हम उसको हैंडल कर सकते हैं या फिर हम उसे ऑपरेट कर सकते हैं। तो टच स्क्रीन इज
ऑल्सो एन इनपुट डिवाइस, क्योंकि हम वहाँ पे इंस्ट्रक्शन स्क्रीन को टच करके दे रहे हैं। तो अगर वो टच स्क्रीन मोबाइल का है तो मोबाइल में भी हो सकता है, टैबलेट में भी हो सकता है। तो टच स्क्रीन इज ऑल्सो वन ऑफ द इनपुट डिवाइस, और इसको हम हार्डवेयर कंपोनेंट कह सकते हैं। सो चिल्ड्रन, माइक्रोफोन हो गया हमारा, डिजिटल कैमरा या वेब कैम आप कह सकते हो। डिजिटल कैमरा हमारे लैपटॉप्स में, हमारे मोबाइल्स में भी होता है, हमारे क्या कहते हैं टैबलेट्स में भी होता है, और वो इनबिल्ट होता है। सो ऑल दीज थिंग्स आर यूज्ड फॉर कैप्चरिंग द पिक्चर। हम फोटो खींचने के लिए, वीडियो बनाने के लिए इनको क्लिक करते हैं। तो जब हमको कंप्यूटर में फोटो या वीडियो के फॉर्म में इंस्ट्रक्शन देना है तो हम वेब कैम का या डिजिटल कैमरास का यूज़ करते हैं। और सो चिल्ड्रन, दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनपुट डिवाइसेस। सो नेक्स्ट वन इज माइक्रोफोन। Then we have digital camera. Digital cameras are inbuilt. They are found in your mobiles or as well as your tablets. Then children, touch screen. Touch screen is also found in mobile or tablets. Touch screen भी हमको मोबाइल और टैबलेट में अवेलेबल रहता है। सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनपुट डिवाइसेस। सो चिल्ड्रन, इट इज़ वन पार्ट ऑफ द हार्डवेयर। तो ये भी एक तरह का हार्डवेयर है। तो ये फर्स्ट पार्ट था। सेकेंड पार्ट जो हम हार्डवेयर में पढ़ेंगे वो है आउटपुट डिवाइस। वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट आउटपुट डिवाइसेस ऑल्सो चिल्ड्रन। सो फर्स्ट हार्डवेयर कंपोनेंट इज इनपुट डिवाइस। Then second one is children output device. So what all we have studied under output devices children? What all we have studied? First thing which we have studied under output devices children, monitor. MONITOR, मॉनिटर। सबसे पहला आउटपुट डिवाइस जो हमने पढ़ा है मॉनिटर है। सो चिल्ड्रन, एज वी नो, वॉट एवर वी डू ऑन द कंप्यूटर, हम जो भी कंप्यूटर पे काम करते हैं, चाहे वो रिटन वर्क होता है और यू आर वॉचिंग मूवी और यू आर वॉचिंग कार्टून और यू आर लिसनिंग टू द म्यूजिक, या फिर चिल्ड्रन यू आर राइटिंग समथिंग ऑन द कंप्यूटर, एवरीथिंग इज डिस्प्लेड ऑन द मॉनिटर। और उसके बाद आप जो भी काम कर रहे हो वो आपके मॉनिटर पे दिखता है। तो पहला रिजल्ट हमें मॉनिटर पे ही दिखता है। तो इट इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट आउटपुट डिवाइस। एक इम्पॉर्टेंट आउटपुट डिवाइस है एंड इट इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कंप्यूटर। इट इज वन ऑफ द important part of the computer system. Without monitor also you cannot do any work. You won't be able to perform any work. So children, monitor is one of the important part of the computer which is used to display the final result, which is used to display the result or which is used to give the information. So that is why children it is known as output device. As we know children, giving the result which we get from the computer is called output, and the device which is used to give the result is called output device. So this also we have studied in our previous chapter, in our previous class. So you already know about output devices also. Second type of output device is children, that is B. ये है printer. ये है printer. So children, the same information, the same result which we get on the monitor, if you want to get it on the paper, you use printer. So printer is another output device. अगर आपको मॉनिटर का जो भी रिजल्ट डिस्प्ले है मॉनिटर पे वो आपको पेपर में चाहिए तो आप प्रिंटर का यूज करते हैं। तो प्रिंटर इज अनदर इम्पॉर्टेंट डिवाइस as it is giving output children, as it is giving the final result children, and this final result can be printed on the paper. So it is another important आउटपुट डिवाइस। तो जो रिजल्ट हमको यहाँ मॉनिटर पे दिख रहा है हम उसे प्रिंटर के थ्रू पेपर पे ले सकते हैं, और आउटपुट इससे भी हमें रिजल्ट मिल रहा है, और रिजल्ट किससे मिल रहा है, इस डिवाइस को यूज करके। तो यहाँ पे हमें आउटपुट मिल रहा है यूजिंग द प्रिंटर। सो प्रिंटर इज अनदर आउटपुट डिवाइस। देन चिल्ड्रन, नेक्स्ट इज एज वी नो थर्ड टाइप ऑफ आउटपुट डिवाइस इज स्पीकर। अगर आपको गाना सुनना है तो हम स्पीकर का यूज करते हैं। तो यहाँ पे द सेम आउटपुट
तो वी आर गेटिंग समथिंग फ्रॉम द कंप्यूटर। हमें जो भी चीज़ यहाँ पे गाना जो सुनने को मिल रहा है वो कंप्यूटर से सुनने को मिल रहा है या मोबाइल से सुनने को मिल रहा है, तो हमको कुछ मिल रहा है, वी आर गेटिंग समथिंग, सो दैट इज आउटपुट, दैट इज रिजल्ट, दैट इज रिजल्ट वी आर गेटिंग फ्रॉम द स्पीकर। सो आउटपुट है ये, क्योंकि हमें रिजल्ट मिल रहा है, और डिवाइस यूज्ड इज speaker. So speaker is another output device. So children, this is second hardware component, input hardware component. Second one is output. Then we will talk about children third one, storage device. जैसा कि हम जानते हैं storage device के बारे में भी हम अपने पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं. What are these storage devices children? Storage device, YCE, storage device. What do you mean by storage? सबसे पहले स्टोरेज का मतलब क्या होता है? स्टोरेज का मतलब होता है कीपिंग समथिंग सेफली फॉर द फ्यूचर यूज। आपने अपने घर में देखा होगा, मम्मी जो होती हैं जब विंटर शुरू होती है तो गर्मी के कपड़े संभाल के रख देती हैं और आपको विंटर वाले आपके कपड़े निकालती हैं जो कि उन्होंने पिछले गर्मियों के बाद विंटर्स के बाद रखा होता है। तो यहाँ पे आपकी मम्मी ने अपने आपके कपड़ों को सेफली स्टोर करके रखा है, तो कीपिंग दोज क्लोथ्स सेफली इज कॉल्ड स्टोरेज। हम ना सिर्फ पहनने वाली चीज़ों को स्टोर करके रखते हैं, हम खाने पीने की चीज़ों को भी स्टोर करके रखते हैं। किसी भी चीज़ को सेफली स्टोर करके रखना, व्हेन इट इज़ नॉट अवेलेबल यू कैन, सो दैट वी कैन यूज इट व्हेन इट इज़ नॉट अवेलेबल। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो सीजनल होती हैं, तो वो हर सीजन में नहीं मिलती, तो हम कभी कभी उसको प्रोसेस करके या सेव करके रखते हैं, उसको अलग फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। खाने पीने की चीज़ की बात मैं कर रही हूँ आपसे, हम उसे दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करके हम उसको स्टोर करके रख देते हैं ताकि हम उसको बाद में यूज़ करते हैं। जैसे कि चिल्ड्रन फ्रूट्स होते हैं, फ्रूट्स को हम एज इट इज़ खाते हैं, उसके बाद अगर फ्रूट्स का हम जैम बना के दे, उसको प्रिजर्व कर दे या उसको स्टोर करके रखते हैं, उसमें कुछ प्रिजर्वेटिव मिलाते हैं ताकि वो खराब ना हो और फिर उसको बाद में यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम उसका स्टोरेज कर रहे हैं। स्टोरेज क्यों कर रहे हैं? ताकि हम इसको बाद में यूज़ कर सकें। तो चिल्ड्रन, जितनी भी फसल होती है वो एक बार होती है, लेकिन हम उसको पूरे साल चलाते हैं, तो उसका प्रॉपरली स्टोरेज किया जाता है, कोल्ड स्टोरेज में चीज़ें रखी जाती है, फिर हम सो दैट उसको हम जब तक नेक्स्ट फसल नहीं आती तब तक उसको आराम से यूज़ कर सके। तो कीपिंग समथिंग सेफली फॉर लॉन्गर यूज़ और फॉर द फ्यूचर यूज़ इज कॉल्ड स्टोरेज। अब जैसा कि हमने पढ़ा था इनपुट, और इनपुट करने के लिए डिवाइस का यूज़ करते हैं, तो उसी तरह से स्टोरेज के लिए भी वी नीड सम डिवाइसेस। अगर हम किसी चीज़ को संभाल के रखते हैं तो हमें ट्रंक की ज़रूरत होती है, कपड़ों को रखने के लिए ट्रंक की ज़रूरत होती है, अलमीरा की ज़रूरत होती है। वहीं पे जब हम अपने फूड को रखते हैं या फिर किसी भी चीज़ को बना के प्रिजर्व करते हैं, तो उसके लिए कोई ना कोई कंटेनर में हम उसको रखते हैं, या टिन बॉक्स में रखते हैं, स्टील बॉक्स में रखते हैं, और टाइट लिड वाले बॉक्स में रखते हैं कि वो ख़राब ना हो। तो इसी तरह से हम कुछ डिवाइसेस का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे भी जब हमको किसी चीज़ को स्टोर करना है तो हम डिवाइस को यूज़ करेंगे। अब किसको हम कंप्यूटर में किस चीज़ को स्टोर करते हैं? हम इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं। जो भी काम हम कंप्यूटर से करते हैं, उन इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए हमें कुछ डिवाइसेस की ज़रूरत होती है। क्यों हम उस इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं? हमारा एक बेनिफिट है कंप्यूटर से काम करने का कि कंप्यूटर जो भी काम करता है उसे स्टोर करके सेफली फ्यूचर यूज के लिए रख लेता है। तो चिल्ड्रन, इन आवर प्रीवियस क्लास वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टोरेज डिवाइसेस। अब इस स्टोरेज डिवाइसेस में चिल्ड्रन वी वर टॉकिंग अबाउट द मेन स्टोरेज डिवाइस। मेन स्टोरेज डिवाइस का मतलब होता है वो स्टोरेज डिवाइस विच इज प्रेजेंट इनसाइड द कंप्यूटर। तो वी वर टॉकिंग अबाउट अ हार्ड डिस्क। जो आपने CPU देखा है, CPU के बारे में आप पहले से भी आपने पढ़ा है, आप बहुत अच्छे से जानते हो कि CPU इज़ अ ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। जैसे हमारा दिमाग होता है, हमारे शरीर में दिमाग होता है और हमारा शरीर हमारे दिमाग की सुन करके काम करता है, ठीक है। तो जो दिमाग होता है वो हमें इंस्ट्रक्शंस देता है। तो इसी तरह से हमारे कंप्यूटर में एक पार्ट होता है जिसे हम CPU कहते हैं। इट इज़ जस्ट लाइक ह्यूमन ब्रेन, वो एकदम ह्यूमन ब्रेन की तरह होता है। और जब भी हमें कंप्यूटर को जो भी करना है तो उसका जो भी काम होता है वो उसकी प्रोसेसिंग CPU ही करता है। तो यहाँ पे CPU में एक बॉक्स होता है जिसे हम सेफ कहते हैं। जैसे सेफ का मतलब क्या होता है? वो ऐसी जगह जहाँ पे हम अपनी चीज़ों को, आपने देखा अलमीरा में भी सेफ होता है, और उसमें हम, हमारी मम्मी को देखा होगा, वैल्यूएबल्स रखती है। वैल्यूएबल्स में आप पैसे रख सकती हैं और कुछ कीमती पेपर्स, इंपॉर्टेंट पेपर्स रख सकते हैं, ज्वेलरीज रख सकते हैं। तो बहुत सारी ऐसी घर की इंपॉर्टेंट चीज़ें हम उस सेफ में रखते हैं। सिमिलरली चिल्ड्रन, इन आवर CPU also we have
बॉक्स काइंड ऑफ थिंग जिसे हम हार्ड डिस्क और ड्राइव कहते हैं. एंड दिस हार्ड डिस्क और ड्राइव इज कॉल्ड मेन स्टोरेज डिवाइस, क्योंकि जो भी हम कंप्यूटर में सेव करते हैं वो जाकर के हार्ड डिस्क में सेव हो जाता है. वो जैसे अलमीरा में कपड़े हम फोल्ड करके सरिया के रखते हैं, उसी तरह से वो उसमें भी स्टोर हो जाता है और सेफली कलेक्ट हो जाता है. तो हम उसको तो हमारा मेन स्टोरेज डिवाइस हार्डवेयर होता है. तो चिल्ड्रन, दिस इज वी विल बी रीडिंग more about this storage device in our next video. So children, whatever we have done today, you go through the chapter, you read the chapter, read hardware components. Under hardware components children, we have studied about input devices and various output devices. You read and learn these things, and we will be reading discussing about storage devices in detail in our next video. Till then children, stay safe children, don't go out of your house, and children, if you are going out anywhere, please wear mask and take all the precautions to keep yourself safe from COVID-19. So children, this is all for today. We will meet once again in our next video. Till then, thank you.